حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کے مطابق پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام مال سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے، جن کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے اور ستائش کے قابل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، امراض کے لیے شفا بخش دواؤں سے واقف ہوں گے، کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے، ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلح کو وصیت کی، کیونکہ خداوند سبحان نے انہیں وحی کی تھی کہ اپنے فرزند متوشلح کو وصیت کرو کہ میں بہت جلد ہی ان کے صلب سے ایک پیغمبر مبعوث کروں گا جس کے افعال میری رضائیت اور تائید کے حامل ہے۔ میراث الزمان میں ہے ادریس علیہ السلام نے اپنے فرزند متوشلح سے وصیت کی اور چونکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا لہٰذا وہ نور جو ان کی طرف منتقل ہوا تھا اس سے آگاہ کیا۔ مروج الذہب میں ہے متوشلح اخنوخ کے فرزند اپنے باپ کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور شہروں کے بسانے میں مصروف ہو گئے، اور ان کی پیشانی میں ایک تابندہ نور درخشاں تھا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے اخنوخ نے اس متوشلح کو فرمان خداوندی کے مطابق اپنی جانشینی کے لیے انتخاب کیا اور دنیا سے رحلت کرنے سے قبل ان سے اور ان کے اہل و عیال سے لازم وصیت فرمائی اور انہیں آگاہ کیا کہ خداوند عالم بہت جلد ہی قابلیوں اور جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے دوستوں اور ان پر عذاب نازل کرے گا، اور انہیں ان کے ساتھ خلط ملط ہونے سے منع کیا۔ تاریخ طبری اور اخبار الزمان میں مذکور ہے جب متوشلح کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے لمک کو جو نوح کے والد تھے وصیت کی اور ان سے عہد لیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر کی مہر کردہ کتابیں اور صحیفے ان کے حوالے کیے۔ اس طرح سے وصیت ان تک منتقل ہوئی۔ امام ابن جریر نے مجاہد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں۔ حضرت انس اور قتادہ سے بھی یہی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں۔
बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा। सूरह मरियम की आयत वरफ़अनाहु मकानन अलिया के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद मकाम पर उठा लिया था। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जन्नत लिया है, बाज़ के नज़दीक इससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होना है, और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान की तरफ उठाया जाना है। तफसीर की किताबों में इस बारे में कुछ रिवायात का जिक्र हुआ है। इमाम तबरी की एक रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर सफ़र में रहे, धूप की तेज़ी और तपिश से आपने बहुत तकलीफ़ महसूस की। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह सूरज की तपिश हल्की कर दे और इसको चलाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अगली सुबह आफताबी फरिश्ते ने खिलाफ मामूल गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो उसे जवाब मिला, मेरे बंदे इदरीस ने सूरज की हिद्दत में कमी और तुम्हारा बोझ हल्का करने की दरख्वास्त की थी और मैंने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। का इमाम तबरी बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे सामने काब से सवाल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फ़रमाया है वरफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने उनको बुलंद जगह पर उठा लिया, इसका क्या मतलब है? काब ने कहा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने ये वही की कि मैं हर रोज़ तुम्हारे इतने अमल बुलंद करूँगा जितने तमाम बनु आदम के आमाल हैं, तो तुम ज़्यादा अमल करने से मोहब्बत रखो। फिर फ़रिश्तों में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक दोस्त उनके पास आए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ इस तरह की वही की है, तो तुम मलकुल मौत से कहो कि वो मेरी रूह कब्ज़ करने को मुअख्खर कर दे ताकि मैं और ज़्यादा अमल करूं। वो फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाकर आसमान पर चढ़ गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचा तो मलकुल मौत नीचे उतर रहे थे, तो उस फरिश्ते ने मलकुल मौत से वो बात कही जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कही थी। मलकुल मौत ने कहा, इदरीस कहाँ हैं? उस फरिश्ते ने कहा, वो मेरी पीठ पर हैं। मलकुल मौत ने कहा, हैरत की बात है, मुझे इदरीस की रूह कब्ज़ करने के लिए चौथे आसमान पर ही भेजा गया है और मैं ये सोच रहा था कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूँगा, वो तो ज़मीन पर हैं। फिर उन्होंने चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। जबकि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आप भी आसमानों पर उठा लिए गए। इमाम तबरानी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। बस उन्होंने इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है, तो मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ। मलकुल मौत ने उस हुक्म की तामील की और रूह कब्ज़ करके उसी वक्त आपकी तरफ लौटा दी और आप फिर ज़िंदा हो गए। फिर आपने फरमाया कि अब मुझे जहन्नुम दिखाओ ताकि खौफ इलाही ज़्यादा हो। चुनाचे ये भी किया गया। जहन्नुम को देखकर आपने दारोगा जहन्नुम से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो, मैं इस दरवाज़े से गुज़रना चाहता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया और आप उस पर से गुज़रे। फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपको जन्नत में ले गए। आप दरवाज़ों को खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुए। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद मलकुल मौत ने कहा, अब आप अपने मकाम पर तशरीफ़ ले चलिए। आपने फरमाया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि हर शख्स को जहन्नुम पर गुज़रना है, तो मैं गुज़र चुका। अब मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ। और जन्नत में पहुँचने वालों के लिए खुदावंद कुद्दूस ने ये फरमाया है, वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, कि जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अब मुझे जन्नत से चलने के लिए क्यों कहते हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत को
वही भेजी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया मेरे इज़्न से किया और वो मेरे ही इज़्न से जन्नत में दाखिल हुए, लिहाजा तुम उन्हें जन्नत ही में रहने दो। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और ज़िंदा हैं। इसकी सराहत बाइबल किताब पैदाइश में भी मनकूल है कि हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में आजी और लोगों की तालीम के लिए एक दुआ मांगा करते और ये हुक्म देते कि ये दुआ बेवकूफ़ लोगों को न सिखाओ। वो दुआ ये थी, ए बड़ी शान व शौकत वाले, ए बड़े फजल वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू परेशान हालों का मददगार, पनाह के तलबगारों को पनाह देने वाला और डरने वालों को उनसीयत बख्शने वाला है। मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ कि अगर मैं लौहे महफूज में शकी लिख दिया गया हूँ तो तू लौहे महफूज से मेरी शकावत मिटा दे और अपने पास मुझे खुशबख्त तहरीर फरमा दे, और अगर मैं लौहे महफूज में महरूम रिज़्क़ में तंगी दिया हुआ लिखा गया हूँ तो तू लौहे महफूज से मेरी महरूमी और रिज़्क़ की तंगी मिटा दे और मुझे अपने पास सआदतमंद और हर भलाई की तौफीक दिया हुआ लिख दे। ये दुआ बहुत उम्दा है, इसमें खौफ खुदा का इजहार, बारगाह इलाही में आजी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुफिया तदबीर से डरना, ईमान पर इस्तिक़ामत की तलब, बुरे ख़ात्मे से पनाह, अच्छे ख़ात्मे के हुसूल, दुनिया और आखिरत की खैर, रिज़्क़ की फरावानी और नेकियों की तौफीक और बहुत कुछ इसके अलावा चीज़ें मांगी गई हैं। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।